حساب برابر ہو گیا ناول کا سیکنڈ پارٹ۔ کل فلم کی ریلیز تھی، اس کی زندگی کا ایک یادگار دن۔ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ابھی کالج میں دوستوں کو پاس دے کر آیا تھا، انہیں آنے کی تاکید کر کے آیا تھا۔ زبیر کا پاس اس نے کاشف کو دے دیا تھا۔ اس کی ساری کلاس تھرڈ ایئر میں جا چکی تھی، کچھ لڑکے انجینئرنگ میں جا چکے تھے، مگر اب اسے ان باتوں کا دکھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی فلم کا ایک گانا سیٹی میں گنگناتا ہوا جب ری ٹرائنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھے صفدر صاحب کو دیکھ کر اس کے ہونٹ سکڑ گئے اور چٹکیاں بجاتی انگلیاں پٹک کر رہ گئیں۔ اس کو دیکھتے ہی وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ بھائی سلام بھائی، شرمندگی بھری آواز میں بمشکل اس نے کہا۔ ان کی کاٹدار نظریں اس کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں، چلو میرے ساتھ، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اماں جی کو کیا ہوا؟ وہ کچھ بدک کر بولا۔ اچھا تمہیں ابھی خبر ہی نہیں ہے کہ اماں جی کو کیا ہوا؟ انہوں نے چپتی ہوئی سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ کہاں ہے اماں جی؟ ہاسپٹل میں۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پوچھے۔ نہیں، پہلے اسپتال میں تھی، اب گھر پر ہے۔ ان کا لہجہ سے ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ انہیں وہ ہکلا کر رہ گئے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں بلا رہی ہیں، مل لو جا کر۔ وہ نظریں چرا کر بولے، میں کل آ جاؤں گا، آج نہیں۔ حیدر نے بڑی ہمت سے کہہ کر نظریں چرا لی۔ وہ کچھ دیر کھڑے اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھتے رہے، یا شاید اندر امڑ آنے والے غصے کو پیتے رہے۔ بہت پچھتاؤ گے ایک دن، روؤ گے ان دنوں کو یاد کر کے، وہ دانت پیس کر بولے اور پھر تیز قدموں سے واپس چلے گئے اور وہ کوشش کے باوجود ان کے پیچھے نہ جا سکا۔ پھر اگلے روز اس کی فلم کا پریمیئر تھا، شہر کے سب سے مشہور سنیما ہال میں۔ حامد صاحب کے ساتھ ہدایت کار، کچھ دوسری مشہور ہستیاں، فلمی ہستیاں، شہر کے نامی لوگ، پریس والے اور وہ خود۔ پھر ندا، جس سے اس کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ رنگ اور نور کا ایک سیلاب تھا، خوشبوؤں سے بھیگا ہوا سارا ماحول۔ پھر فلم کا افتتاح لال فیتہ کاٹ کر ہوا اور لائٹیں بجھا کر فلم کا پہلا شو شروع ہوا۔ حد سے زیادہ بھیڑ تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے اب کسی بات کی پرواہ اور فکر نہ تھی۔ شو ختم ہوتے ہی اسے حمید صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار تھا۔ وہ فارغ ہوں تو وہ ان سے رقم لے کر گھر روانہ ہوں۔ انہیں فارغ ہوتے ہوتے 3 بج گئے۔ مارے فکر کے اس کا برا حال ہو گیا۔ عامر، خدا کے لیے حمید صاحب سے کہو مجھے کچھ دے، میرے پاس تو اب کرایہ بھی نہیں ہے۔ اس نے عامر کی منت کی۔ اچھا میں بات کرتا ہوں حمید صاحب سے۔ وہ جب آدھے گھنٹے تک واپس نہ آیا تو اس نے 2-3 لوگ اس کا پتہ کرنے کے لیے دوڑائے تو وہ نشے میں دھت سائڈ روم میں پڑا تھا۔ کوفت کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ 3:30 بجے وہ ندا سے 500 روپے ادھار لے کر اسٹیشن کی طرف بھاگا۔ رات کے سائے پھیل چکے تھے جب وہ گھر کے آگے تانگے سے اترا۔ اس کے گھر کے آگے دریاں بچھی تھیں اور دور پڑے کے رشتہ دار ٹولیوں میں بیٹھے تھے۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی سب کاناپوسی کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے آنگن میں داخل ہوا، مکرم بھائی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے باہر کی طرف دھکا دیا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہوا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ دائیں طرف سے ابا جی نکل آئے اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے دروازے سے باہر دھکا دے دیا۔ وہ منہ کے بل گر پڑا۔ نکال دو اس کتے کو باہر۔ اب کیا لینے آیا ہے؟ کیا ماں کا کفن بیچنے آیا ہے؟ حرام خور! ان کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میرا خون اتنا گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ مکرم اسے دھکا دے کر ایسی جگہ پھینک کر آؤ کہ دوبارہ اس کی یہ منحوس صورت نہ دیکھ سکوں۔ وہ زور سے چلائے۔ صفدر بھائی نے کندھے سے اسے قمیض کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ لے جاؤ اس سور کو، میں نے اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ جیسے اس نے ماں کی پیاسی نظروں کو ترسایا ہے، اسے میں ویسے ہی پیسے کو ترساؤں گا۔ نالیوں کا پانی پیے گا۔ ابا جی کی دہاڑ سے زیادہ اسے ماں کی موت کی خبر نے جیسے اندھا کر دیا تھا۔ اسے نہ تو راستہ نظر آ رہا تھا، نہ دھکا دینے والے ہاتھ۔ دھکے کے بعد وہ منہ کے بل گر پڑا تھا۔ پھر کوئی اسے آگے دھکیل دیتا۔ وہ ٹھوکریں کھاتا گیا۔ وہ انہی ٹھوکروں کا حقدار تھا اور حق پہچاننے میں اس سے بڑا جلد باز کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح تو اس نے ماں سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ پھر پتہ نہیں کون سے دھکے سے اسے گاؤں سے باہر لا پھینکا تھا۔ وہ ساری رات اسی کھیت میں پڑا بے آواز آنسوؤں سے روتا رہا۔ اس کا چہرہ لہولہان ہو چکا تھا اور کپڑے تار تار، مگر نہ تو زخم تکلیف دے رہے تھے، نہ پھٹے ہوئے کپڑوں سے برچی کی طرح گزرتی ہوئی سرد ہوا۔
वो फोड़ा था जो अंदर ही अंदर बह निकला था। लहू की एक नहर थी जो फूट निकली थी। वो सारी रात चित्त सीधा लेटा रहा, जिसमें से जैसे जान ही निकल गई। सिर्फ आंसू थे जो बहे जा रहे थे। शायद रात का आखिरी पहर था। जब उसके आंसू सिसकियां बनने लगे, उसकी घुटी घुटी आवाज बुलंद होने लगी, फिर वो दाढ़े मार मार कर रोने लगा। सिर्फ अम्मा अम्मा की चीखें निकल रही थी। मुझे माफ कर दो अम्मा जी, वो चिल्लाने लगा। उसने सर पटक पटक कर जमीन पर मारा। अम्मा जी, ये मैंने क्या किया? पता नहीं कब तक वो तड़पता रहा और कब उसका गला बंद हो गया। शायद वो बेहोश हो गया था। फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने हाफिज चचा को अपने जख्म साफ करते देखा। उन्होंने उसके आंखें खोलने पर कुछ न कहा, बस खामोशी से जख्म साफ किए और उन पर मरहम लगाया और चले गए। उसका बदन बुखार की गर्मी से किसी भट्टी की तरह सुलग रहा था। वो फिर बेहोश हो गया। फिर 2-3 दिन हाफिज चचा के घर छुपा रहा। वो उसे दवा देते, वो चुपचाप ले लेता, ना वो पिज्जा आराम से खा लेता, ना उसे घर वालों से के मुतालिक उन्होंने कुछ बताया, ना उसने पूछा। पूछने को रह ही क्या गया था। चौथे रोज उन्होंने उसे मुंह अंधेरे उठाया और कपड़े बदलने के लिए दिए। तुम्हारा बाप और भाई तुम्हारी सूरत देखने के रवादार नहीं, और वो हक पर भी है। हो सकता है तुम्हारा भी इतना कसूर ना हो, लेकिन अभी वो गुस्से में है, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से अब चले जाओ। यूं भी होने वाली बात हो ही गई है। माँ का चेहरा न देख सके आखिरी वक्त, फिर अब क्या करोगे? ये यहाँ रहकर माए ही राब्ता होती है। इन रिश्तों के बीच तुम्हारा वो राब्ता ही टूट गया, इसलिए अभी यहाँ से चले जाओ। हालात अच्छे हो गए तो लौट आना। वो उसे गाड़ी में बैठाते हुए समझाने लगा। ट्रेन चल पड़ी और वो खाली दिल और जख्मों से भरा बदन लिए लौट आया। स्टेशन से बाहर आकर उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। होटल तो कब का छूट चुका था, स्टूडियो भी उसका जाने का जी नहीं चाह रहा था। कोई ऐसा अपना हो जिसे गले लगा कर वो रो सके। कितनी देर तक वो बेमकसद सड़क पर चलता रहा। जुबैर के पास जाऊं, उसने सोचा। कोई कह रहा था कि उस दिन तो उसे इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया था। उसे याद आया। इस बात पर उसे हंसी आ गई थी। भला उसे एडमिशन कैसे मिल सकता है, जबकि वो पहले दर्जे का नालायक था। फिर आखिरी दिन तक वो उसके साथ स्टूडियो आता रहा था। हाँ, महीनों 1.5 महीने से जरूर पड़ा होगा भाई के घर जाकर। मगर उससे क्या होता है? यही कुछ सोचता हुआ वो जुबैर के घर जा पहुंचा। घर में कोई नहीं था। उसका भाई तो जाहिर अपनी ड्यूटी पर गया होगा। भाभी शॉपिंग को गई होगी। जब बहुत माल आने लगता है तो यूं ही शॉपिंग को जी चाहता है। उसकी भाभी को भी ये चस्का पड़ गया था। मायूस होकर जाने लगा तो पीछे से उसे जुबैर के भाई की आवाज़ सुनाई दी। कौन? जुबैर को पूछ रहा था। वो शायद नौकर से बोले थे। जुबैर बाबू का कोई दोस्त था जी, नौकर ने जवाब दिया तो हैदर रुक गया। इतनी देर जुबैर का भाई बाहर आ गेट तक आ पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुबैर का दोस्त हूँ, उससे मिलने आया था। बोलते हुए उसे अपनी आवाज़ भी अजीब अजनबी लग रही थी। जुबैर के भाई ने सर से पैर तक उसे देखा। उसकी नजरें एक पुलिस इंस्पेक्टर की नजरें थी, शक में डूबी हुई, जांचती हुई। तुम कब से नहीं मिले हो जुबैर से? उन्होंने भारी आवाज़ से पूछा। शायद 3-4 महीने से। उसने जानबूझकर दिन कम कर दिए हो, उसने ओंकार भरी। वो तो इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरे शहर में है। उसे लगा वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, वो कुछ मायूसी से बोला। नंबर तो उसके अच्छे थे, इधर भी उसे दाखिला मिल सकता था, पर यहाँ उसकी सोबत अच्छी नहीं रही थी। कोई ख़राब सी फिल्मी यार बन गए थे उसके। मैंने सोचा ज्यादा ही ना उसके साथ घुल मिलकर अपना रास्ता ना खोटा कर बैठे, इसे अभी से दूर भेज दूं। तुम सुनाओ, क्या कहते हो आजकल? क्या करते हो? वो मूंछों को ताव देते हुए बोले। जी मैं बस। उसे कुछ जवाब न सूझा। जुबैर ने तो बड़ी मेहनत की थी, बड़े अच्छे नंबर आए थे उसके। मैं तो उसे हॉस्टल से इसलिए ले आया कि हॉस्टल में उसका रूममेट लड़का था, वो बड़ा खराब था। गांव से आया था, शहर आते ही उसकी आंखें फट गई। ये गांव वाले बहुत जल्दी अपने औकात भूल जाते हैं। वो ठेठ ठानेदार अंदाज में बोले। पहले तो नालायक पढ़ता ही नहीं था। उन लोगों के पास तो ज़मीनों का माल आता है, दोनों हाथों से लुटाते हैं, और नाम होता है कि पढ़ने आए हैं। उन्हें पढ़ना क्या होता है? वो तो शहर की बत्तियां देखने आते हैं या दूसरों को खराब करने। फिर वो किसी फिल्मी चक्कर में फंस गया। मुझे तो जैसे ही पता चला, मैं तो जुबैर को उठाकर घर ले आया।
ट्यूशन लगवा दी। 3 महीने में सोना हो गया लड़का। शुक्र है उसने उस मरदूद की सोबत से बचा लिया उसे। कोई फिल्म भी आई है उसकी, सुना है? तुम्हें तो पता होगा। हैदर को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था और जमीन तो उस रात नहीं फटी थी जिस रात उसके बाप और भाइयों ने बुरी तरह मार कर उसे को ले आसमान तले फेंका था। आज जैसे फट जाती तो जुबैर के साथ पढ़ते रहे हो। उसने मुरब्बतन यही कहा था, शायद अंदर आ जाओ। नहीं जी, मैं चलता हूँ, शुक्रिया। आंसुओं का गोला उसके गले में फंस रहा था। वो नजरें झुकाए पलट गया। उसे दिल लगा जुबैर के भाई को सब मालूम था, गांव के लड़कों की भी और अपने भाई की भी चालाकी। और उनकी बिल्ली जैसी शातिर आके कह रही थी कि उन्हें सब कुछ खबर थी। वो वाकई ना समझ जाहिल निकला। जुबैर को समझ ही न सका उसने ऐसा क्यों किया। वो समझ ही नहीं पा रहा था। वो तो उसका बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़ा हमदर्द, प्यार करने वाला। सिर्फ एक बार दोनों की लड़ाई हुई थी शुरू के दिनों में, जब जुबैर ने किसी लड़के का पार्कर पेन उड़ा दिया था और हैदर ने उसे मोज़े के अंदर रखते देख लिया था। और फिर सर की मौजूदगी में सारी क्लास की तलाशी ली गई तो हैदर की निशानदेही पर वो पेन जुबैर से बरामद किया गया। बाद में जुबैर ने हैदर का गिरबान पकड़ लिया तो हैदर ने इतनी जोर से उसकी कलाई मरोड़ी थी कि उसकी चीखें निकल गई थी और उसने हैदर से मुआफ़ी मांग ली थी। फिर इसके बाद दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए थे। फिर कभी उनका झगड़ा ही नहीं हुआ। फिर उसने ऐसा क्यों किया? इतनी पुरानी और इतनी छोटी बात के का कोई कैसे बदला ले सकता है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चलते चलते वो थक कर रुक गया। वो सिनेमा हॉल के सामने खड़ा था। उसे जैसे कुछ याद आया। उसने गर्दन मोड़कर हॉल की ऊंची दीवारों की तरफ देखा तो वो बिल्कुल सपाट थे। पोस्टर कहाँ गए मेरी फिल्म के? वो तड़प कर मुड़ा। एक आदमी रिक्शे पर उसकी फिल्म के बोर्ड पोस्टर रखे सिनेमा हॉल के कंपाउंड से बाहर निकल रहा था। वो भाग कर उसके पास गया। ये बोर्ड कहाँ ले जा रहे हो? उसने हकला कर उंगली से उल्टे सीधे पड़े बोर्डों की तरफ इशारा किया। बड़ी बुरी तरह पिटी है जी फिल्म। फिर हिदायतकार साहब इनकम टैक्स चोर से छापा पड़ा तो उनके दफ्तर पर। वो तो पहले ही शूटिंग के बहाने मुल्क से बाहर भाग गए थे। हुकूमत ने फिल्म पर बैन लगा दिया। ना भी लगाता तो भी इसे 2-4 दिन बाद उतर ही जाना था। ऐसी फिल्में कौन देखता है जी? ना कोई गरम मसाला, ना गर्मा गर्मी। वो आँख दबाकर बोला, फिल्में तो बनाते यूरोप वाले, क्या बात होती है उनकी फिल्मों में जी? वो मुस्कुरा कर बोला, चलो करामे, जल्दी आ, अगली फिल्म के पोस्टर लाद कर लाने। उसने गर्दन मोड़कर अंदर की तरफ आवाज़ लगाई। जिस रोज उसने 2 गाने फिल्माए थे उसे लगता था वो सर से पाँव तक गंदगी में डूब गया। अब सारी जिंदगी पाक नहीं होगा। पता नहीं किस तरह के झूठे ख्वाब दिखा कर उसने खुद को इस गंदे तस्वर से निजात दिलाई। और वो कह रहा था कि कोई गर्म मसाला नहीं, ना कोई गर्मा गर्मी। उसे लगा वो फिर से गटर में गिर गया है और सारे शहर का गंदा पानी उसकी आँख, कान, नाक और जिस्म के हर मसा में घुसा चला जा रहा है। उसकी टांगों से जान खत्म होने लगी। वो सपाट नजरों से दूर जाती रेड़ी को देखता रहा। वो वही हाल के बाहर बैठ गया। उसे शायद घंटों गुजर गए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शू शू करती आगे पीछे भाग रही थी। रोए गए एक दिन, दीवारों में सर देकर पछताए गए इस दिन को। भैया सफदर की नफरत भरी आवाज़ उसके कानों में आई, नालियों का पानी पिएगा तू? अब्बा जी की दहाड़। उसे लगा कोई उसे पर कोई कोड़े बरसा रहा है और वो दांतों तले जबान दबाए सब कुछ सह जा रहा है। वो कोड़े खाते खाते अनहुआ हो गया। कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? उसने सर हाथों में थाम लिया। दोपहर सहपहर में ढल चुकी थी। सूरज की रोशनी दम तोड़ रही थी जब वो हामिद की कोठी पर पहुंचा। पहले तो चौकीदार ने उसे अंदर ही न जाने दिया। कितने हवाले, कितने वास्ते दिए, फिर जाकर कहीं उसका दिल पिघला। वो आखिरी मोहरा था उसकी पिटी हुई बिसात का, जिसे आगे बढ़ाने के लिए वो घसीटता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। चौकीदार उसके साथ था। हमको सख्ती से साहब ने मना किया है कि किसी को अंदर न जाने दे, पर तुम मानते नहीं। अब अगर साहब खपा हुआ तो मुझसे बुरा भी कोई ना होगा। वो बड़बड़ाता हुआ उसके आगे आगे चल रहा था। अभी इसके बच्चे, मैंने जो तुझसे कहा था कोई भी ना आ जाए तो उसे अंदर नहीं आने देना। मैं आया हूँ हैदर, पैसे वापस करो मेरे। इससे पहले कि चौकीदार पलट कर उसे बाहर निकालता वो एकदम ही
सोफे पर बैठ गया, उस शराबी के सर पर पहुंच गया। कौन हैदर? मैं किसी हैदर को नहीं जानता, दफा हो जाओ यहाँ से। वो अनजान नजरों से उसे घूरते हुए जोर से दहाड़ा। पैसे तो तेरा बाप भी वापस करेगा कमीने। अपने पैसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, धोखेबाज, तेरे हलक से निकलवाऊंगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए उसके सीने पर चढ़ बैठा। उसके मजबूत वजूद के नीचे नशे में चूर आमिर का कमजोर वजूद कसमसा कर रह गया। उसका गिरबान उसके हाथ में था। मुझे दिए थे तूने पैसे, अपने जिस बाप को दिए थे उससे निकलवा, जो सारी रकम हड़प करके मुल्क छोड़ भागा था। मैं अपने नुकसान को रो रहा हूँ, तेरे कहाँ से भरूंगा? वो कुटरा कर बोला और अपनी गिरबान छुड़ाने लगा। उसने कस के मुक्का उसके जबड़े पर मारा तो खून की पतली सी लकीर उसके होठों से बह निकली। तू बना हुआ था उस वक्त शाह का दरबारी, तूने ही दिलवाए थे उसको पैसे। कैसे सब जवाब दिखा रहा था मुझे, एक के दो के तीन करा दूंगा, निकाला दो के एक के दो, वरना मैं तेरी जान निकाल दूंगा। अब मुझे किसी का डर नहीं। उसने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर जोर से झटका दिया तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। एकदम उसे किसी ने पीछे से पकड़कर उसे पीछे धकेला। वो चौकीदार था। फिर दो बंदे और थे उसके साथ जो उस पर फिर पड़े। उसने उनको घूसो लातों से बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया, मगर बेदम होकर गिर पड़ा। बाहर फेंका उस कुत्ते को, आइंदा इधर करे तो पुलिस के हवाले कर देना। उसने लाते घूसों के दरमियान आमिर की नफरत भरी आवाज़ सुनी, फिर उसे कुछ होश न रहा। जब उसकी आँख खुली तो उसके कुछ समझ में न आया कि कहाँ है। दर्द की टीसें थी जिसकी वजह से वो होश में आया था। उसने कराहते हुए उठने की कोशिश की, दर्द की टीसें थी उसे कराहने तक नहीं दे रही थी। कमर जैसे टूट चुकी थी। वो बेदम होकर फिर लेट गया। वो कोई अंधेरी और पेड़ों से घिरी वीरान सी जगह थी। हैदर, तू अभी ना समझ है, तुझे क्या पता यहाँ दुनिया कैसे कैसे सौदागरों से भरी पड़ी है। और सौदागरी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अम्मा जी की आवाज़ों से उसकी सूखी आंखों के सोते फूट निकले। अम्मा जी, मैं वाकई ना समझता। एक ही छलांग में आसमान को छूना चाहता था। अम्मा जी, आपने क्यों ना रोका मुझे इस झूठे माया जाल में पड़ने से? क्यों ना अब्बा जी को बताया? वही मुझे रोक लेते, मेरी टांगें तोड़ देते, मुझे घर में बिठा लेते। क्यों भेजा मुझे बाहर? अम्मा जी, माँ तो आंखों के रंग पहचानती है, फिर क्यों आप अनजान बनी रही? क्यों मुझे साधु से चोर बनने दिया? मेरी बर्बादी का इंतजार क्यों किया गया? रोते रोते उसकी आवाज़ बैठ गई। अब जीने का क्या फायदा अम्मा? अम्मा जी, अब और नहीं जीना, बस अम्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब और दर्द नहीं सह जाता अम्मा जी, मुझे अपने पास बुला ले। वो कराते हुए वह मुश्किल उठ बैठा, हाथ के सहारे खड़ा हुआ और फिर गिर पड़ा। क्या करूँ? बेबसी आंखों से फिर कहने लगी। गिरते पड़ते वीराने से बाहर आ गया। पता नहीं कौन सी सड़क थी। वो घिसटता हुआ मोड़ तक जा पहुँचा। इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी। रात शायद आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। मोड़ तक पहुँचते पहुँचते वो फैसला कर चुका था। उसने दूर से सफेद रंग की एक गाड़ी आते देखी तो वो मोड़ से उधर होकर पुल की ओट में खड़ा हो गया। जैसे ही गाड़ी ने मोड़ काटा, पूरा जोर लगाकर गाड़ी के आगे अगले हिस्से से जा टकराया। एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनने के बाद उसे कुछ नहीं मालूम हुआ कि उसके साथ क्या क्या हुआ। जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को पट्टियों से जकड़ा हुआ अस्पताल के कमरे में पाया और नर्स उसका बीपी चेक कर रही थी। उसने आँखें खोलकर इधर उधर देखा। नर्स प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराई और डॉक्टर को बुलाने चल पड़ी। होश आया और बेहोशी की आंख मिचौली शायद 2 दिन जारी रही। तीसरा दिन था जब उसकी आंख खुली तो वो पूरी तरह होश में था। कोई शख्स उसके बिस्तर के पास बैठा शायद डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर साहब, ये आजकल की नौजवान नस्ल भी हद से ज्यादा जज्बाती है। जरा सी बात को सबसे पहले जान से गुजर जाने का सोचती है, जबकि जान तो उसी वक्त निकलती है जब उसको मंजूर होता है। इसे खेल तमाशे से कुदरत के फैसले तो नहीं बदल सकते। हाँ जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितनी बड़ी नेमत है ये जिंदगी, इसकी कदर कोई मरते से पूछे। अब अगर आप हॉस्पिटल लाने में जरा सी देर कर देते तो बचना मुश्किल था। पूरा बदन अंदर बाहर से जख्मी है। पता नहीं किससे झगड़ा किया है इसने। आपने मेरी बात नहीं मानी, वरना पुलिस केस था, वो खुद ही इससे बनवा लेते।
बंटवारे पर लड़ाई हो गई होगी, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर साहब अभी कम उम्र है, पुलिस के हवाले कर देता तो कल को ये पक्का मुजरिम बन जाता। हो सकता है आपकी बात सही हो, ये वाकई किसी वारदात से भागा हुआ है, लेकिन फिर इसे खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। चेहरे मोहरे से अच्छे शरीफ खानदान का लगता है, बस कभी कभी गलत हाथों में पड़कर ऐसे हीरे भी मैले पड़ जाते हैं। शायद मैं इसकी गर्द उतार सकूं, होश में आएगा तो कुछ पता चलेगा। उस शख्स का लहजा हमदर्दाना था। आपका आपको तो जी काम ही यही है, मोहब्बत और मुरब्बत। हालांकि आजकल हर उल्टा दिमाग मोहब्बत से सीधा नहीं होता, कुछ ढीठों के लिए वाकई सख्ती जरूरी होती है। बहरहाल आपका काम है, आप जाने। आपने तो आपके लिहाज में ये रिस्क लिया है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो आप संभालिएगा। डॉक्टर उठकर खड़ा हो गया। हाँ हाँ, हम संभाल लेंगे। आप किस लिए हम यहाँ किस लिए हैं, आप फिक्र ना करें। बस इसे ज़रा होश आ जाए तब पता चल जाएगा कि जालिम है या मजलूम है। इसे जब होश आएगा तो मुझे बुलवा लीजिएगा, वरना मैं रात तक फिर चक्कर लगा लूँगा। वो दोनों बातें करते हुए बाहर निकल गए। शायद यही शख्स उसे अस्पताल लाया होगा। फिर अगले रोज बैठा नर्स से दवाएं लेकर खा रहा था जब वही शख्स अंदर दाखिल हुआ। मुनासिब जिस्म, दरमियाना कद, फ्रेंच कट दाढ़ी के साथ नाजुक फ्रेम के पीछे से झांकती हुई मुस्कुराती रोशन आंखों के साथ वो खुश शक्ल अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी शक्ल हैदर को कुछ देखी भाली लग रही थी। क्या हाल है भाई, यंग मैन? उन्होंने करीब आकर मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। जी ठीक हूँ, उसने पानी का गिलास नर्स को थमाते हुए कमजोर आवाज में कहा। अब क्या हाल है मिस्टर? हमारे पेशेंट हैं, डॉक्टर साहब विजिट पर आए थे। कुर्सी घसीट कर उसने बेड के करीब की बैठते हुए नर्स से पूछा। जी अब तो बहुत बेहतर है, रात में नर्म गज़ा भी शुरू कर दी है, ड्रिप वगैरह भी उतार दी गई है। डॉक्टर साहब सुबह विजिट कर गए हैं, अब आने वाले हैं। नर्स ने गिलास साइड टेबल पर रख दिया। गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर ही जाऊंगा। जी उनके आने का टाइम हो रहा है, नर्स ने बताया। अच्छा, अब आप लेट जाएं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ साइड रूम में मौजूद हूँ। उसने हैदर से पीछे से तकिया निकाल कर पीछे किया उसे और उल्टा लिटाते हुए कंबल से तक उड़ाया। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, वो उसी शख्स से बोली ठीक है आप जाइए। नर्स साइड रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। वो एक आम सा प्राइवेट रूम था, सिंगल बेड था। हैदर ने लेट कर आंखें बंद कर ली। बेटा, मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? उस आदमी से उसे नर्म लहजे में मुखातिब किया तो शर्मिंदगी की वजह से उसे नजरें मिलाना दुश्वार होगा। जी हैदर अब्दुल रहमान नाम है, उसने बताया। बहुत अच्छा नाम है, वो कहकर खामोश हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद वो फिर बोला। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उसका कल्चर लहजा उसे पानी कर रहा था। जी बेहतर हो। आपको मालूम है पूरे 4 दिन बाद होश आया आपको? वो खामोश रहा। मुझे खज़र हयात कहते हैं और उस रात आपने मेरी गाड़ी के आगे आकर मेरी जिंदगी को कांटों से भर दिया। क्या आप इसी शहर के रहने वाले हैं? पहले तो उसका जी चाहा झूठ कह दे। हाँ, मगर उस शख्स ने कोई बात की थी, उसने झूठ ना बोला। नहीं, वो काफ़ी देर बाद बोला। अगर आप कहें तो आपके घर इतला कर दी जाए, वो लोग फिक्रमंद होंगे। वो उसे ट्रैक पर ला रहा था। जी नहीं शुक्रिया, वो कुछ तलखी से बोला। अच्छा, कुछ नाराज़गी हो गई है घर वालों से? उसने ज़रा सा हंस कर कहा। हो जाता है अक्सर इस उम्र में, लेकिन फिर भी बेटा आप आपके लिए परेशान होंगे सब लोग, उसने मुलायम लहजे में कहा। जी कोई मेरे लिए परेशान नहीं होगा, मैं बेहतर हूँ। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। आप डॉक्टर से कहकर मुझे डिस्चार्ज करवा दें, या अगर आप चाहें तो मुझे पुलिस के हवाले कर दें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जुमला खत्म करते करते जज्बाती होने से उसका सांस तेजी से चलने लगा था। वो फिर हल्का सा हंसा। बड़े जालिम होती है ये उम्र भी, लम्हे भर में इंसान से बड़े बड़े फैसले करवा लेती है। जैसे गैस से भरी सौदे की बोतल कॉक निकलते ही शू करके गैस एक पल में ऊपर को उड़ जाती है, फिर बोतल में निरा पानी रह जाता है, बेकार बेमजा सा। और अगर जज्बात ज़्यादा शदीद हो तो बोतल फटने का भी अंदेशा होता है। फिर वो एक लम्हे ठहर कर बोले। बहरहाल अभी आप गुस्से में हैं, थोड़ा ठंडे दिल से गौर करें। जिंदगी से तो आप अपनी भोगी कोशिश के बावजूद तो पीछा नहीं छुड़ा सके हैं। अब इसे ठुकराई हुई जिंदगी के बारे में सोचिए कि इसमें अभी कहाँ गुंजाइश बाकी है, और मायूसी में खुद को गोली मार लेना बड़ा आसान है।
लेकिन जिंदगी की आंखों में आंखें डालना असल जवामर्दी है और मैं आपको एक अच्छा नौजवान समझता हूँ। आप सोचे मैं ज़रा डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ और अगर मुझे आपको पुलिस के ही हवाले करना होता तो उसे रात गाड़ी में डालकर इधर लाने के बजाय थाने ले जाता। ऐसा मैंने क्यों नहीं किया? ये मेरी रहमदिली नहीं बल्कि ये ऊपर वाले का फैसला था जो उसने मुझसे करवाया। इसका मतलब है वो अभी आपसे कोई काम लेना चाहता है, कोई तौबा कोई अधूरा काम लेना चाहता है। हो सकता है वो निहाल होकर आपके अंदरूनी जख्मों को मरहम बख्श दे। बाहर के जख्म तो भर चुके हैं। ओके, मैं फिर आऊँगा, आप सोचिएगा। उसने उसके सर पर हल्का सा हाथ फेरा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। कोई अधूरा काम? अब कोई अधूरा काम नहीं है, सब काम खत्म हो गया। उसकी आंखें भीगने लगी। क्या गया वक्त भी लौट सकता है और गुंजाइश जिंदगी में तो हो सकती है, मगर मेरे अपनों के दिलों में नहीं। अब क्या रह गया है जो मुझसे करवाना बाकी है? सोचते सोचते उसका सर दुखने लगा तो उसने आंखें मूंद ली। फिर एक हफ्ते के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके जख्म भर चुके थे। हयात साहब बार बार उसे देखने आया करते थे। उस दिन के बाद उन्होंने दोबारा उससे कुछ नहीं पूछा था। नर्स ने उसे बताया था कि वो एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पेशे से वकील हैं। इसके अलावा गांव में उनकी ज़मीनें थीं। इतने बड़े शख्स का इस तरह सादा होना उसे शर्मिंदा कर गया। वो तो अब खुदा को किसी काबिल नहीं समझता था, मगर अब खुद को किसी काबिल ही नहीं समझ रहा था, मगर फिर भी खुदा के नेक मेहरबान शख्स को उस पर मेहरबान कर दिया था। हाँ भाई, अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? यहाँ से तो अब फारिग हो। वो तमाम पेमेंट करने के बाद उसके पास आकर बैठ गया। जी मेरा क्या इरादा होने हैं? उसने मायूसी से कहा था। मायूसी नहीं, अच्छी अच्छी बातें सोचो, कहीं जो तुम्हारी ज़रूरत होगी। उसने एक भी फालतू चीज़ नहीं बनाई। बुज़दिली मत दिखाओ, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें खेलने के लिए दूसरा चांस मिला है। इस चांस से फ़ायदा उठाओ। गया वक्त नहीं लौटा करता। अब अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो अपने बारे में बता दो, और अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं। मेरी जिस किस्म की ज़रूरतें होंगी मैं हाजिर हूँ तुम्हारे लिए। ये मेरा कार्ड रख लो, जब ज़रूरत पड़े बिना झिझक चले आना। उन्होंने कोट के अंदरूनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसे थमाया, जिस पर उनका पता और फ़ोन नंबर लिखा था। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बगैर किसी वजह के मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। अगर मैं ज़िंदगी में कुछ बन सका तो आपकी नेकी का बदला तो नहीं दे सकूँगा, लेकिन शायद आपका शुक्रिया अदा कर सकूँगा। उसने कुछ ठहर कर कहा। मुझे ना तो तुम्हारे शुक्रिया की ज़रूरत है ना एहसानमंदी की, लेकिन अगर तुम मेरे इस अमल को किसी शुमार में गिनते हो तो कल को किसने देखा है? तुम आज ही इसका बदला उतार सकते हो, जबकि ये तुम्हारे बस में भी है। उनकी इस बात पर हैरान होकर उसने देखा। वो उन्हें ऐसे नहीं समझता था कि वो उससे इस नेकी का बदला हाथों हाथ मांग लेंगे। मैं क्या बदला ले सकता हूँ? मेरे तो भी हाथ भी खाली है और दामन भी। उसने बेबसी से कहा। मेरी नेकी का बदला मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कहते हैं जिंदगी बचाने वाला उस शख्स की जिंदगी का मालिक होता है जिसकी उसने जान बचाई है। मैं अब तुम्हारी जिंदगी का मालिक हूँ। उनकी अजीब सी मुस्कुराहट उसे खौफ आने लगा। शायद वो उसे अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इस सूरत में तो कोई इनकार भी नहीं कर सकता था। बेशक आप मेरी ज़िंदगी के मालिक हैं, और वैसे भी ये मेरे किसी काम की है ही नहीं। अगर ये आपके काम आती है तो मुझे खुशी होगी। कुछ देर सोचकर उसने जवाब दिया। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उनकी आंखों की चमक बढ़ गई। तुम अपनी ज़िंदगी के बदले मुझसे एक वादा करो। उसने सवालिया नज़रों से देखा कि तुम जिंदगी में कभी भी दोबारा ये दिलाना काम नहीं दोहराओगे। पता है ये जिंदगी खुदा का तोहफा है, और जब कोई किसी का तोहफा देता है तो उसे खुशी हंसी के साथ कबूल करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, नाक में नहीं चढ़ाते। तुम अगर किसी को तोहफा दो और वो तुम्हारे बार बार कहे ये क्या ये तोहफा दिया है इतना हकीर, मैं नहीं देता, क्या गुजरेगी तुम पर, जबकि तुमने वो तोहफा पूरे खुलूस और मोहब्बत से दिया हो। उनकी बातों पर उसका सर शर्म से झुक गया। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। हम लोग दिन में 10 बार तो जरूर ही कहते हैं ये कि कोई जिंदगी है, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। तो खुदा को कितना बुरा लगता होगा। तुम अब जिंदगी में कभी दोबारा इस बड़ी नेमत को ठुकराने का ख्याल भी नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। उन्होंने हाथ उसके आगे फैलाया। उसने एक लम्हे को उन्हें देखा और फिर झिझक कर हाथ बढ़ा दिया
उन्होंने गर्मजोशी से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। बस मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना, सिर्फ इस वादे पर कायम रहना। ये वादा तुम्हें किसी चोर रास्ते की तरफ नहीं ले जाने देगा, और तुम्हारे अंदर जो अच्छा और नेक लड़का है वो तुम्हें कोई गलत काम नहीं करने देगा। मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया और खड़े हो गए। आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ जहाँ तुम कहो, और अगर कुछ रकम की ज़रूरत हो तो कहो। जी नहीं शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊँगा। बस आप बस दुआ कीजिए। वो भी उठ खड़ा हुआ। क्यों नहीं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हो सके तो अब सीधे आप घर आ जाना। ये कुछ पैसे किराए वगैरह के लिए रख लो। उन्होंने 500 रुपये का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। नो सर, बहुत शुक्रिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। उसने हाथ पीछे कर लिया। उन्होंने एक लम्हे को उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए नोट वापस जेब में रख लिया। अस्पताल के गेट तक दोनों इकट्ठे बाहर आए। हैदर, तकल्लुफ़ मत करो, मैं तुम्हें स्टेशन तक ड्रॉप कर देता हूँ, और मुझे खुशी होगी ऐसा करने में। उन्होंने एक बार फिर उसे ऑफर की। नहीं, नो सर, थैंक यू सर। उसने शिद्दत से इनकार किया तो उन्होंने सर हिला दिया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। चंद लम्हों में गाड़ी सड़क पर दौड़ती गाड़ियों में नजरों से ओझल हो गई। वो कुछ देर यहाँ खड़ा रहा, फिर आहिस्ता कदमों से फुटपाथ के साथ चलने लगा। खाली हाथ, खाली जेब। उसके पास इतना भी नहीं था कि रात के खाने का कहीं से इंतजाम कर सके, कहीं सोने के लिए पनाह ले सके। जबकि अभी उसके जिस्म में कमजोरी बाकी थी। वो नजरें झुकाए सोच के में गुम जा रहा था जब किसी ने उसे करीब आकर पुकारा था। हेलो इधर, तुम कहाँ फिर रहे हो भाई? वो नवेद था। उसने उदास से मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो उसके बढ़े हुए हाथ को थाम लिया। हेलो नवेद, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ रह रहे हो इतने दिन? बहुत कमजोर लग रहे हो, और माथे पर ये जख्म कैसा? उसने पिछले अस्पताल की बिल्डिंग पर एक नज़र डालते हुए पूछा। बस एक्सीडेंट हो गया था। वो ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? क्या अस्पताल में थे? हाँ, अभी डिस्चार्ज हुआ हूँ। उसने ज़रा पीछे ऊपर बाउंड्री के जंगले से टेक लगाते हुए कहा। तुम इतने दिनों कहाँ थे? तुमने इम्तहान भी नहीं दिया? फिर तुमने सुना तुम्हारी फिल्म आई थी और फैन भी हो गई। क्या गाँव गए हुए थे? उसने एक ही सांस में सब कुछ भूल डाला। हाँ, बस छोड़ इस जिक्र को। उसके जख्म उधेड़ने लगे थे। अब क्या गाँव जा रहे हैं? नहीं। उसने सर उठाकर आसमान पर उड़ते परिंदों को देखा। नहीं को खींच कर लंबा किया। फिर कहाँ जा रहे हो? जहाँ नसीब ले चले। उसने उदासी से मुस्कुराते हुए उसे देखा। वो इसका मतलब है घर वालों से झगड़ा हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तो चलो, आज रात मेरी तरफ आ जाओ, फिर बातें होंगी। वो बोला। नहीं, तुम्हें तकलीफ होगी। उसने तकल्लुफ़ से कहा। इतनी नहीं होगी जितनी तुम्हें कबूल करते हुए हो रही है। अब जबकि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, चलो मेरे साथ, फिर सोच लेना कि तुम्हें क्या कहाँ जाना है। उसने उसका हाथ थामते हुए कहा। तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? वो परेशान हुआ। इतने अनकल्चर्ड नहीं है मेरे घर वाले, 1-2 दिन की मेज़बानी कर ही लेंगे। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो फिलहाल और कोई रास्ता भी नहीं था। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ गए। फिर वहाँ जो नवेद के साथ एक रात रहना उसके घर में आ गया। 15 दिन वहाँ रहने के बावजूद कोई फैसला न कर सका कि कहाँ ठिकाना करे। उसके घर वाले अच्छे थे, मगर किसी की अच्छाई को उसका सब्र नहीं बनाना चाहिए। वो भी अब जल्दी से जल्दी कहीं ठिकाना कर लेना चाहता था कि उसके घर वालों की बदलती नजरों से लफ्ज बनने से पहले निकल गए। नवेद को उसने अपनी कहानी तोड़ मरोड़ कर सुनाई। नवेद भी उसको बात में तस्दीक की थी कि जुबैर भाई IT में एडमिशन ले चुका है। इस तरह काम में उसके थानेदार भाई के ताल्लुकात बड़े काम आए थे। हैदर सब कुछ सुनकर चुप रहा। उसे अब इस टॉपिक से ही चिढ़ होती थी। जुबैर कहता था कि नवेद का दिमाग और नक चढ़ा है। ये तो उसे अब पता चला था कि खैर लोग उसकी कदर खुरदुरे और किसी कदर सख्त होते हैं। वो सख्ती शायद उनके अंदर ही सच्चाई उनमें पैदा कर देती। फिर नवेद की कोशिश से हैदर को उसके चचा के डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन की जॉब मिल गई। रोजगार का मसला किसी कदर हल हो गया था, मगर रिहाइश का मसला अभी बाकी था। कई बार उसके दिल में आया कि हयात साहब से मिले, मगर फिर उसने एहसानों का सोच कर कार्ड दोबारा जेब में डाल लेता। एक कमरा तो अक्सर जगहों पर किराए के लिए मिल रहा था, मगर मालिक मकान उसके खूबसूरत सराफे को देखकर बिदक जाता, क्योंकि सबके घरों में 1-2 औरतें तो
ज़रूर थी और उसको किराएदार रखना मुनासिब नहीं था। फिर नवेद के भाई का दोस्त उसे अपने फ्लैट पर ले गया, जहाँ उसके साथ 2 लड़के और किराएदार थे। बहरहाल एक कोने में उसके बिस्तर की गुंजाइश निकल ही आई थी। सारा दिन उसका स्टोर पर गुजरता, देर रात कमरे में आकर सो जाता। उसने सोचा, इस तरह तो कुछ नहीं बनेगा। उसकी नौकरी तो ठीक थी और नवेद का चचा भी अच्छा था, मगर उसका बेटा ज़रा बदतमीज और मनमानी करने वाला था। वो जब भी स्टोर पर आता हैदर पर कुछ न कुछ एतराज़ ज़रूर करता। उसका रवैया बड़ा हौसला तोड़ने वाला होता था। उसने सोचा, अगर उसे यहाँ से जवाब मिल गया तो फिर क्या करेगा। ज़रूरी नहीं इस तरह की कोई और जॉब मिल जाए। उसकी तालीम भी कम थी। यही सोचकर उसने इंटर की तैयारी शुरू कर दी। 4 महीने बाद होने वाले एग्ज़ाम में बैठने का उसने पक्का इरादा कर लिया। साइंस न सही, आर्ट सही, हाथ में डिग्री का होना ज़रूरी है। फिर उसने दिन रात एक करके तैयारी की और इम्तहान में बैठ गए। फिर जद्दोजहद का एक लंबा सफ़र था और अम्मा का नाजुपाला हैदर ज़िंदगी का ये रूप उसके लिए अब तक बिल्कुल नया था कि एक एक निवाले को हासिल करने के लिए मेहनत मशक्क़त से गुजरना पड़ता था। कितने दिन उसने एक होटल में बैरागिरी की, सुबह शाम अखबार बेचे। उसे अब ये खौफ नहीं सताता था कि कोई उसे देख लेगा तो क्या होगा।